Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we will explain means of promoting wound hemostasis in oral and maxillofacial surgery. So, what is hemostasis? Hemostasis is a process to prevent and stop bleeding. It is the first stage of wound healing. It includes three steps that occur in a rapid sequence. Number one is vascular spasm or vasoconstriction. Second is formation of a platelet plug. And third one is blood clotting or coagulation, which reinforce platelet plug. Although the prevention of excessive blood loss during surgery is important for preserving oxygen carrying capacity, but maintaining careful hemostasis during surgery is necessary for other important reasons. What are those important reasons? Number one is decreased visibility created by uncontrolled bleeding. अगर आप हाई वॉल्यूम सक्शन भी यूज करेंगे और ब्लीडिंग हो रही होगी तो सर्जिकल फील्ड को कंप्लीटली ड्राई रखना नामुमकिन है और स्पेशली क्या है इन द वेल वास्कुलराइज्ड ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल रीजन. And second thing is the formation of hematomas is a consequence of surgical bleeding. The formation of hematomas, they place a pressure on wounds, decrease vascularity, increase tension on wound edges, and hematomas can act as a cultural media potentiating the development of a wound infection. So, what are the means of promoting wound hemostasis? Uh, it can be achieved in different ways. Number one is by assisting natural hemostatic mechanisms. Number two is thermal coagulation, suture ligation, use of vasoconstrictor, medication, for example, transamine, application of hemostatic agent. Now, number one is by assisting natural hemostatic mechanisms. This is usually accomplished by using digital pressure on bleeding area. सबसे पहले जब आप bleeding area देखें, ठीक है, तो आप क्विकली रिस्पांस दे सकते हैं. इफ यू वांट यू कैन पुट अ डिजिटल प्रेशर ऑन द ब्लीडिंग एरिया. दूसरा जो तरीका ये है कि वो आप स्पॉन्ज, ठीक है, वो रख सकते हैं ब्लीडिंग एरिया पे, वेसल के ऊपर, उस एरिया के ऊपर आप प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए फैब्रिक स्पॉन्ज. And number three is that you can hold the bleeding vessel with a hemostat. The curved hemostat is most commonly used to hold the vessel. These methods cause stasis of blood in vessels which promote coagulation. अच्छा, आपने few थोड़े इंस्ट्रूमेंट को जो है यूज करना है, ठीक है, बिकॉज फ्यू इंस्ट्रूमेंट कैन मिनिमाइज द डैमेज वाइल होल्डिंग द सॉफ्ट टिश्यू. आप अगर ज्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन करेंगे, ठीक है, तो ब्लीडिंग के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे. अच्छा, जो छोटी वेसल्स है उसके ऊपर आपने प्रेशर अप्लाई करना है 20 to 30 सेकेंड्स के लिए, ठीक है, ये सफिशिएंट होता है. और वेयर इज अ लार्जर वेसल्स विल रिक्वायर 5 to 10 मिनट्स ऑफ कंट्रोल प्रेशर. और जो ज्यादा लार्जर हैं फिर उसको आपने सुचर करना है, जो थोड़ी देर में अभी पढ़ते हैं, ठीक है. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने जब प्रेशर अप्लाई करना है तो क्या करना है, आपने डैप करना है.
ठीक है, डैब करना यानी उसको प्रेशर को अप्लाई करना है, वाइप नहीं करना। वाइपिंग का मतलब है कि आपने प्रेशर से उसको वाइप कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, यू विल reopen the vessels that are already plugged by the clotted blood। तो आप वाइपिंग के जरिए से वेसल्स की जो क्लोज हो गई थी प्लेटलेट प्लग की वजह से, वो रीओपन हो जाएंगी और दोबारा ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। अच्छा, सेकंड मेथड जो है वो थर्मल कोआगुलेशन है। थर्मल कोआगुलेशन में हम हीट को यूज करते हैं टू स्टॉप द ब्लीडिंग, and the use of heat to cause the ends of the cut vessel to fuse, and heat is usually applied through an electrical current that the surgeon concentrates on the bleeding vessel by holding the vessel with a metal instrument such as an hemostat or by touching the vessel directly with an electrocautery tip। इसको जो है ना इस पिक्चर से जो अच्छी नहीं है बहरहाल, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें हमारा हीमोस्टेट है, ठीक है। ये वेसल को हमने क्या किया, होल्ड किया हुआ है। ये जो है ना वो क्या है, इलेक्ट्रोकार्टरी है, उसकी टिप है, ठीक है ना। तो एक मेथड तो ये है कि आपने ये जो इलेक्ट्रोकार्टरी की टिप है इससे डायरेक्टली वेसल्स को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर क्या होगा, उसको क्वेक कर सकते हैं, यानी उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा ये है कि आप इस तस्वीर में जो नजर आ रहा है कि हमने यहाँ पे जो है किस चीज से इसको पकड़ा हुआ है, हीमोस्टेट से इस वेसल को पकड़ा हुआ है, एंड वी आर टचिंग दिस हीमोस्टेट विद अ कार्टरी टिप। तो जब आप कार्टरी टिप को इसके साथ टच करेंगे तो हीट विल बी जनरेटेड एट द टिप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। ये जरा इजी होता है कि आप जो है ना वेसल को होल्ड कर लेते हो प्रॉपरली, तो एक्स्ट्रा साइड का जो एरिया है वो भी बर्निंग नहीं होती, और जो एरिया आपने पकड़ा हुआ है वहीं पे सिर्फ जो है वो बर्निंग होगी या कोएगुलेशन होगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्टरी हमारे पास टू टाइप्स की होती है। एक मानो पोलर है जो इस डायग्राम में नजर आ रही है, ठीक है। इसके देखें दो वो हैं, ठीक है ना। एक कट है, ठीक है, ये येलो जो है ये कट है, और ये जो ब्लू है जो है ये क्वेक है। यानी कि आप इससे इंसिजन भी दे सकते हैं, ठीक है ना। इस बटन को आप जब दबाएंगे तो आपने कट जब जहां देना है, इंसिजन ब्लेड के तौर पे जो यूज करते हैं, ठीक है, ये वो है। और आपने वेसल को जो क्वैक करना होगा, यानी कोआगुलेशन करनी है, ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, फिर आपने इस बटन को दबाना होगा, ठीक है। ये मानो पोलर इलेक्ट्रोकार्टरी है। ये हमारे पास बाईपोलर इलेक्ट्रोकार्टरी जो है ना वो फोर्सेप है। इसके टू बीक्स आप देख सकते हैं, ठीक है। इससे आप वेसल को होल्ड करते हैं, ठीक है, और हीट जनरेट होती है इन दो टिप्स में, और कोआगुलेशन होती है, ठीक है ना। ये बाईपोलर है। इसमें और उसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो एक तो ये है कि उसमें आपने देखा कि सिर्फ एक ही है, यानी मोनोपोलर है, और इसमें जो है वो बाईपोलर है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे आप जब लगाते हैं ना, तो ये इसको क्वेग और कट दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, जबकि इसमें जो कट है ना, जो इंसिजन देना होता है वो इससे डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसके दो टू पीक्स है ना, दो दो एंड्स हैं, ठीक है। लेकिन जो क्वेग के लिए जो है ना ये बेस्ट है। ये जो एक्स्ट्रा एरिया है, ये तो एक्स्ट्रा एरिया को भी बर्न करेगा, जबकि इससे आप वेसल को होल्ड कर लोगे तो ये आपका वही वाला एरिया बर्न करेगा, यानी वही वेसल को। तो एडजेसेंट जो सराउंडिंग एरिया है उसमें बर्निंग जो है इसमें मिनिमाइज हो जाती है, ठीक है। इसका ये एडवांटेज है। लेकिन कट के लिहाज से वो क्या है, मोनोपोलर कार्टरी जो है वो आप यूज कर सकते हैं। ये देखें, ये इसका डिवाइस है कंप्लीट बाईपोलर का, ठीक है। ये इसका वो है, और ये सारा इसका कंप्लीट डिवाइस है कि आपने कैसे उसको करना है। अब यहाँ इसको समझना जरूरी है। मोनोपोलर में देखें, आपने पेशेंट को ग्राउंड करना होता है। ग्राउंड का मतलब ये है कि आपने ये जो प्लेट है एक, ठीक है, मेटल की प्लेट, क्योंकि मोनोपोलर में जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पूरी बॉडी में से गुजरेगा, तो ये कहाँ आपने रखना होगा, इट शुड बी अराउंड द थाइस, ठीक है। थाई के एरिया में, या काफ मसल वाला जो लोअर लिम्ब का जो एरिया है
उधर आपने रखना है। इस प्लेट को आपने बोनी प्रोमिनेंस के एरिया में नहीं रखना। और ये जो साइड पे आपको शार्प एंड से इसके नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये भी यानी इसी तरह हो पड़ी हो, जैसे स्ट्रेट पड़ी हो, लेकिन आपने इनको इसको अब्लीक या टेढ़ा नहीं रखना, वरना ये जो चीज़ है बोनी प्रोमिनेंस के साथ टच होगा या उसके तो उसमें बर्न कर सकता है, ठीक है। इस प्लेट का भी आपने ख्याल रखना होगा, आपका ओटीए या ट्रेन असिस्टेंट जो है उसको प्रॉपर रखे। तो ये देखें, मोनोपोलर में चूंकि उसका एक ही एंड होता है, तो इसमें करंट जो है वो पूरी बॉडी में से गुजरेगा ऐसे, ठीक है, पूरी बॉडी में से ऐसे गुजर के जाएगा। जबकि मोनोपोलर सॉरी बाईपोलर में जो है वो करंट पूरी बॉडी से नहीं गुजरता। आपको इस प्लेट की जरूरत नहीं होती, ग्राउंड करने की जरूरत नहीं होती। तो यहां से क्या होता है कि करंट जब यहां से आता है, आपको नजर आ रहा है, जो ही इसमें जाता है तो इसी टिश्यू वाले एरिया में से गुजर के उसकी एक बीक से गुजर के दूसरी बीक में वापस चला जाता है, ठीक है। तो इसी टिश्यू वाले एरिया में ही सर्कुलेट करता है। ये इसका एडवांटेज होता है बाईपोलर का। पहले बता चुके हैं कि इसका लिमिटेड बर्न होता है, ठीक है। यहां देखें, इसमें मोनोपोलर है, ठीक है, मोनोपोलर यूज हो रही है। ये प्लेट रखी गई है, ठीक है, थाई वाले एरिया पे रखी गई है। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पूरी बॉडी में से ऐसे गुजर के पास हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखें मोनोपोलर जो है उससे वो एरिया को जो है क्या है कर रहे हैं, क्वेक कर रहे हैं या ब्लीडिंग को स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें, आपको ये बाईपोलर है और ये मोनोपोलर है। मोनोपोलर में बर्निंग एरिया दिखा रहा है कि ज्यादा एडजेसेंट एरिया को बर्न करता है, जबकि बाईपोलर में जो है लिमिटेड एरिया जो है वो बर्निंग होती है। ये इसका एडवांटेज है बाईपोलर का, ठीक है। यहाँ देखें एक और क्लिनिकल पिक्चर है, इसमें आप इंसिजन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, मोनोपोलर है उसे जो है ना आपने इंसिजन आप देना है ऐसे स्ट्रेट, ठीक है। इसका एडवांटेज ये होता है कि लेस ब्लीडिंग होती है जब आप काटरी के जरिए से इंसिजन देते हैं। तो आपको एग्जैक्ट एनाटॉमिकल लोकेशन पता होनी चाहिए और इस इंसिजन से वो जो है ना ब्लीडिंग कम होती है। ये मोस्ट कॉमन इंसिजन है, ठीक है, ली फोर्ट वन ऑस्टियोटोमी के लिए देते हैं, ठीक है। यहाँ आपको वेस्टिबुलर एरिया नजर आ रहा है, इंटीरियर टीथ जो है उसका एरिया, ये पोस्टीरियर टीथ वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वेस्टिबुलर जो एरिया है, ठीक है, सल्कस है, इसमें आपने इंसिजन दिया है। इसको क्या कहते हैं, ली फोर्ट वन ऑस्टियोटोमी का इंसिजन है, इलेक्ट्रोकार्टर से दिया गया है, ठीक है। Three conditions should be created for proper use of thermal coagulation. First is the patient must be grounded to allow the current to enter the body, uh, and you will use it for unipolar as we discussed in the previous slides. Second is that the cartridge tip, this cartridge tip, or any metal instrument, yeah, this one that contacts the cartridge tip, ठीक है, ये वाला मेथड should not touch the patient at any point other than the site of bleeding vessel, otherwise the current may flow in undesirable path and create a burn, ठीक है। आपने जो ये कार्ट्री टिप है इसको किसी और जगह पे टच नहीं करना, या इस इंस्ट्रूमेंट को जिससे आप कोगुलेशन करना चाहते हैं, ब्लीडिंग स्टॉप करना चाहते हैं, इसको भी आपने उस ब्लीडिंग वेसल के अलावा टच नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा कि अननेसेसरली बर्न होगा। दूसरा जो है वो क्या है कि द रिमूवल ऑफ एनी ब्लड और फ्लूइड that is accumulated around the vessel to be cauterized. फ्लूइड क्या करता है कि फ्लूइड जो है वो हीट को उस वेसल तक पहुंचने से रोकता है। इसको हम समझते हैं इस डायग्राम से, ठीक है ना। उसी डायग्राम को फिर समझते हैं। अब देखें, यहाँ आपने इसको इंस्ट्रूमेंट इधर आपने इसको पकड़ लिया, ठीक है, आप टच कर रहे हैं, इधर आपने क्या करना है, इसको क्वेक करना है, लेकिन यहाँ फ्लूइड या ब्लड है इस एरिया, ठीक है। जब फ्लूइड एंड ब्लड होगा तो आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ से
इसने क्या करना है कि हीट जनरेट नहीं होगी क्योंकि यहाँ फ्लूइड होगा, ठीक है। सो यू शुड यूज द हाई वॉल्यूम सक्शन, ठीक है, ताकि इस एरिया में जब आपने वेसल को होल्ड कर लिया है तो फ्लूइड या और ब्लड वगैरह ना हो, क्लीन हो, so that the heat can be generated at the is at this required end, ठीक है, without any interruption, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड इस हीट को उस टारगेट तक पहुंचने से क्या करता है, रोकता है। अगला मेथड क्या है, सुचर लाइगेशन है। अगर वेसल जो है वो आपने आइडेंटिफाई कर ली है, ब्लीडर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, होल्ड इट विद अ हीमोस्टेट एंड देन अप्लाई द सुचर इज शोन इन दिस डायग्राम। दूसरी बात यह है कि आप कोशिश करें कि नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर को यूज करना है, ठीक है, नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर को यूज करना है। क्यों कि एब्जॉर्बेबल सुचर में लीडर जो है वो आर्टरी भी हो सकती है और वो प्रेशर की वजह से एब्जॉर्बेबल सुचर को वो क्या करेगा, खोल देगा, ठीक है, रीओपन हो सकता है। सो टू अवॉइड दिस यू विल यूज अ नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर व्हाइल लाइगेटिंग अ वेसल। अच्छा, इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है, इस पिक्चर में देखें, सबसे पहले जो है दो आपको वेसल नजर आ रही हैं, इसमें आपने हीमोस्टेट अप्लाई कर देना है क्विकली, ठीक है। फिर इस वेसल को आपने फ्री करना है सराउंडिंग टिश्यू से ताकि आप जो है सुचर अप्लाई कर सकें। तो इसको उन्होंने सराउंडिंग टिश्यू से डायसेक्ट किया है, उसको फ्री किया है, ठीक है। फ्री करने का बाद इस एंड पे भी सुचर अप्लाई कर देंगे आप, इस एंड पे भी सुचर अप्लाई कर दिया जाएगा, दोनों साइडों को टाई कर देंगे तो ब्लीडिंग आपकी स्टॉप हो जाएगी। जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी तो इन दोनों हीमोस्टेट्स को आप अगले स्टेप में रिमूव कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप हो गया कि आपने सबसे पहले ब्लीडर को या ब्लीडिंग वेसल को आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसको होल्ड कर लिया, दोनों एंड्स को होल्ड करने के बाद आपने डायसेक्ट किया ताकि ये एंड दोनों फ्री हो जाएं, so that you can apply a proper suture on both ends। आपने दोनों एंड्स पे सुचर अप्लाई कर दिए हैं, लाइगेशन कर दी है, और उसके बाद जो लास्ट स्टेप है, यू विल रिमूव द बोथ हीमोस्टेट। We can see this explanation in two contexts. First is if a vessel can be dissected free of surrounding connective tissue before it is cut, two hemostat can be placed on the vessel with enough space left between them to cut the vessel। यहाँ आप देखें इस मॉडल में शो किया गया है, आपने फॉर एग्जांपल डायसेक्शन की है, ठीक है, और डायसेक्शन के दौरान में आपको वेसल आई है, ठीक है। तो आपने दोनों एंड पे क्या है, सबसे पहले वेसल को डायरेक्टली नहीं काटना बल्कि दोनों एंड पे आपने हीमोस्टेट को अप्लाई कर लेना है, ठीक है। यानी दोनों अगर देखें तो दोनों हीमोस्टेट के दरमियान सफिशिएंट स्पेस है, ठीक है, सो दैट यू कैन इजीली कट। और जैसे इसमें हमने एक्सप्लेन किया कि आपने इस वेसल को क्या करना है, यू कैन डायसेक्ट इट फ्रॉम द सराउंडिंग टिश्यू इज एक्सप्लेन्ड इन दिस डायग्राम। तो आपने वो स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इस वेसल को क्या करना है, कट कर देना है, ठीक है। ब्लीडिंग नहीं होगी क्योंकि आपने इन दोनों को अप्लाई किया हुआ है, और यहाँ पे सूचर को एंड्स पे, दोनों एंड्स पे सूचर को अप्लाई कर देना है, ठीक है। दूसरा ये है कि आपने इसी मॉडल को देख लें या इसको देख लें डायग्राम को, आपने सर्जरी की और इंसिडेंटली जो है आपसे वेसल जो है वो क्या है, इंजर्ड हो गई, ठीक है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो आपने उसको क्या करना है, सबसे पहले होल्ड कर लेना है हीमोस्टेट से, ठीक है ना, और फिर उसके गिर्द आपने सुचर लगा लेना है। तो उसमें भी सुचर लगाने में भी आपको प्रॉब्लम हो, तो जैसे पहले इसमें हमने एक्सप्लेन किया, आपने उसको सराउंडिंग टिश्यू से आप क्या कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं और उसके बाद सुचर को अप्लाई कर सकते हैं। सर्जरी कंप्लीट करने के बाद आपने फ्लैप की प्रॉपर सुचरिंग करनी है। अच्छा, अगला जो है हमारे पास जो मेथड है वो यूज ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्टर है। तो वेजो कंस्ट्रिक्टर जो है, फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रीन जो है, इसको एड्रेनलिन भी कहते हैं, ठीक है ना, वो सर्जिकल
फील्ड में, सर्जिकल एरिया में, बिफोर स्टार्टिंग द सर्जरी आपने वहां पे उसको में क्या करना है, इंजेक्ट करना है, ठीक है ना। लेकिन हम एपिनेफ्रीन को प्योर फॉर्म में यूज नहीं करते, ठीक है। प्योर फॉर्म में क्या है कि ये 1/1000 की कंसंट्रेशन में होती है, वो हम एनाफाइलैक्सिस और दूसरी कंडीशंस में यूज करते हैं। यहाँ पे हम क्या है, लोकल एस्थेटिक जो एजेंट है उसमें चूंकि ऑलरेडी एड्रेनलिन की कंसंट्रेशन होती है, वो हम यूज करते हैं, ठीक है ना। लोकल एनेस्थेटिक को यूज करते हैं, अभी बात करते हैं उसकी। तो एपिनेफ्रीन करती क्या है, ठीक है ना। एपिनेफ्रीन क्या है, वेजो कंस्ट्रक्शन करेगी, ठीक है ना। और आपने इसको अप्लाई करना है एटलीस्ट 7 मिनट्स बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द सर्जरी। आपने उससे पहले करना है, सो दैट द एपिनेफ्रीन कैन एक्ट टू काज द वेजो कंस्ट्रक्शन, ताकि आप जब इंसिजन दें, सर्जरी करें, तो आपको ब्लडलेस फील्ड मिले। अच्छा, यहाँ हमने अभी बात की कि हम क्या करेंगे कि एपिनेफ्रीन को प्योरली यूज नहीं करना, क्योंकि हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो 1/1000 एपिनेफ्रीन है, और वो हमने एनाफाइलेक्सिस या दूसरी कंडीशंस के लिए यूज करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लोकल एनेस्थेटिक यूज करेंगे। इस लोकल एनेस्थेटिक में हमारे पास क्या है, 1/80,000, 1/100,000, 1/150,000, 1/200,000। ये मुख्तलिफ कंसंट्रेशन है किसकी, एपिनेफ्रीन और एड्रेनलिन की, जो एज ए वेजो कंस्ट्रक्टर होता है, किसमें, लोकल एनेस्थीसिया में अवेलेबल होता है। तो हमने लोकल एनेस्थेटिक एजेंट को क्या करना है कि उस एरिया में जहां आप सर्जरी करना चाहते हैं और इसलिए यूज करना चाहते हैं, लोकल एनेस्थीसिया के तौर पे नहीं यूज करना चाहते, बल्कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इसको इंजेक्ट करें फॉर द पर्पस ऑफ वेजो कंस्ट्रक्शन, टू डू अ सर्जरी इन ब्लडलेस फील्ड, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने इसका ख्याल करना है कि नेवर नेवर यूज द वेजो कंस्ट्रक्टर फॉर पोस्ट एक्सट्रैक्शन ब्लीडिंग। पोस्ट एक्सट्रैक्शन ब्लीडिंग का पेशेंट आपके आ गया है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया उस एरिया में नहीं लगाना, ठीक है ना। उस पोस्ट एक्सट्रैक्शन ब्लीडिंग को ट्रीट करने के लिए, तो उसके लिए आप ब्लॉक लगाएं, ठीक है। और क्यों, कि जब आप इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया देंगे तो उससे ब्लीडिंग क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी टेम्परेरीली, ठीक है ना। क्योंकि एड्रेनलिन क्या करती है, वेजो कंस्ट्रक्शन करेगी और ब्लीडिंग को स्टॉप कर देगी। लेकिन जो ही इसका इफेक्ट वेव ऑफ होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि पेशेंट अम्यूनो कंप्रोमाइज है, आपने टेस्ट किया है नहीं किया है, ठीक है। तो जो ही उसका डिसअपियर होगा एड्रेनलिन एपिनेफ्रीन का इफेक्ट, तो फिर क्या होगा कि रिकरेंट ब्लीडिंग दोबारा स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट इज मेडिकेशन। फॉर एग्जांपल ट्रांजामीन है, ट्रेनेक्सेमिक एसिड है, इसकी डोज क्या है, 500 टू मिलीग्राम टू 2 ग्राम है। आईवी स्टेट देना है आपने, डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी ऑफ ब्लीडिंग एंड द कंडीशंस ऑफ द पेशेंट। ये अवेलेबल है हमारे पास, कैप्सूल्स में भी अवेलेबल है, इंजेक्शन में भी अवेलेबल है। ड्यूरिंग सर्जरी जो है वो आपने क्या करना होता है कि आपने इंजेक्शन ही देना है, ठीक है ना। लेकिन आपने स्लो इंजेक्शन देना होता है। और अब पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग या जो ओटी टेबल पे पेशेंट नहीं होगा, डेंटल चेयर पे पेशेंट नहीं होगा, तो उसके लिए आप कैप्सूल एडवाइस पेशेंट को कर सकते हैं। एक आपके साथ अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ कि आप ड्यूरिंग सर्जरी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो या इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी की ब्लीडिंग हो, फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर मैंडिबल में आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसके साथ जो है वो सोलोकार्टिफ जो 100 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम में डिपेंड करता है, जाहिर है डिपेंडिंग अपॉन द एज वेट ऑफ द पेशेंट, ठीक है ना। तो अगर आप सोलोकार्टिफ को या जो है आप डेक्सामिथासोन को, ठीक है ना, डेक्सामिथासोन के इंजेक्शन को अगर आप यूज करना चाहें, ठीक है, वो भी आपके पास जो है वो 1 ml, जिसमें 4 मिलीग्राम होता है, ठीक है, या 20 ml का एम्प्यूल जो है, उसके हिसाब से आप देखें कि 1 ml पे 4 मिलीग्राम है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट क्या होता है, 20 मिलीग्राम बन जाता है।
वो भी डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस पे कि आपने कितनी डोज देनी है। लेकिन अगर आप स्टीराइड को यानी सोलोकार्टेफ या डेक्सामेथासोन को प्लस एवेल को फिनेरामीन मेलिएट, ये भी आपके पास इंजेक्टेबल्स में फॉर्म में है, ठीक है, 25 मिलीग्राम है, 50 मिलीग्राम है, आप जितनी भी चाहें, डिपेंड करता है कंडीशंस पे, ठीक है, पेशेंट एज पे, पेशेंट के वेट पे। तो आप अगर ट्रिनेक्सेमिक एसिड को, ठीक है, स्टीराइड के साथ जो मैंने बता दिए, और उसके बाद एंटीहिस्टामीन जो बताई एवेल, इसको मैंने क्लिनिकली खुद कई केसेस में प्रोफ्यूज ब्लीडिंग में जो इमरजेंसी ब्लीडिंग थी और वो उसमें यूज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट आए। आप भी ट्राई करें इसको ऐसी कंडीशन में जहाँ ब्लीडिंग बिल्कुल स्टॉप ना हो रही हो, ठीक है, और आप सर्जरी कर रहे हैं ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप उसमें यूज़ करें, यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। अब हम आ जाते हैं कि हीमोस्टेटिक एजेंट का कैसे यूज़ करना है, ठीक है ना, टू स्टॉप अ ब्लीडिंग। तो उसके लिए हमारे पास कमर्शियली अवेलेबल जो है वो मटेरियल्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एब्जॉर्बेबल जेलेटिन स्पॉन्ज है, जिसको हम फॉर एग्जांपल इसमें जो है हम कह सकते हैं कि जेल फॉर्म है, ठीक है। ऑक्सीडाइज रिजेनरेटेड सेलुलोज सर्जिसेल है, बहुत पुराना मटेरियल है। टॉपिकल थ्रोम्बिन है जो कि लिक्विड प्रिपरेशन होती है। इस टॉपिकल थ्रोम्बिन को जो सी है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, इसको हम ए के साथ जो है कंबाइन करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। इसको उसके साथ मिक्स कर देंगे और अप्लाई करेंगे। उसके बाद है कोलेजन है, ठीक है ना। इसमें यहीं से एक चीज एक्सप्लेन कर दें कि देखें एब्जॉर्बेबल जेलेटिन स्पंज जो है, ठीक है ना, जेलेटिन एब्जॉर्बेबल जेलेटिन स्पंज जो है, ये आप सॉकेट में क्या कर सकते हैं, सॉकेट में आप इसको पैक नहीं कर सकते, इसलिए आपको एब्जॉर्बेबल जेलेटिन स्पंज को जब भी आप अप्लाई करेंगे करेंगे यू हैव टू गो फॉर अ फिगर ऑफ 8 सुचर, तो उससे आप इसको होल्ड करेंगे विद इन द सॉकेट, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज जो है क्या कुछ हो सकती है, ये गिर सकती है। दूसरा ये ऑक्सीडाइज रीजनरेटेड सेलुलोज जो है सर्जिसेल है, इसको आप पैक कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद घास पीस अप्लाई कर दें। कोलेजन जो सी है, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, पैक कर सकते हैं इनटू द सॉकेट, ठीक है, और फिर उसके नीचे आप घास पीस आप ठीक है वो आप रख सकते हैं, ठीक है। अब हम हीमोस्टेटिक एजेंट को वन बाय वन लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले नंबर पे क्या है, एब्जॉर्बेबल जेलेटिन स्पंज है, तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है एंड लीस्ट एक्सपेंसिव है। और थोड़ी देर में हमने अभी बात की है कि इट कैन नॉट बी पैक्ड इन अ ब्लीडिंग सॉकेट, it needs figure of 8 suture to be held in place. फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रैक्शन सॉकेट में जब आप रखते हैं ना, तो उसके लिए आपने फिगर ऑफ 8 सुचर लगाना है, ताकि वो उस सॉकेट में ही आप उसको मेंटेन रखें और ब्लीडिंग भी स्टॉप रहे। अच्छा, इसका एक डिसएडवांटेज है कि जो जेलेटिन स्पंज है, इट बिकम्स फ्राइबल, फ्राइबल मीन टू ब्रेक इन पीसेस व्हेन वेट। तो आपने कोशिश करनी है कि आपका जो माउथ वाला एरिया, उसमें सलाइवा या जो ब्लीडिंग है, उसमें आपने क्या करना है, इसको वेट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वेट जब आप ये होगा तो क्या होगा कि छोटे छोटे पीसेस में हो जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू पैक प्रॉपरली और कीप इट इन अ सॉकेट। तो ये हमें फिगर ऑफ 8 हमें नजर आ रही है, ठीक है, इस पिक्चर में। फिगर ऑफ 8 आपने प्रैक्टिकली सीखना है। ए में देखें दिखाया गया है, बी में वो मटेरियल को अप्लाई किया गया है, ठीक है, और फिगर ऑफ 8 के जरिए से इसको क्लोज कर दिया गया है। ये हमारे पास जेल फॉर्म है, सही है, जो कि अभी हमने बात की, ठीक है। एब्जॉर्बेबल जेलेटल sponge जो है क्या है, इट फॉर्म्स अ scaffold for the formation of a blood clot and the suture helps maintain the sponge in position during a coagulation process. A gauze pack is then placed over the top of the socket and is held with a
प्रेशर, ठीक है। एब्जॉर्बेबल जेलेटन स्पॉन्ज में आपने क्या किया कि फिगर ऑफ ए, पहले इसको आपने सॉकेट में क्या किया, अप्लाई कर दिया। सॉकेट में अप्लाई करने के बाद आपने फिगर ऑफ 8 लगा दी, और उसके बाद आपने गाज पीस को जो है वो प्रॉपरली उसके टॉप पे यानी सॉकेट में आपने उसको कर दिया, और पेशेंट को कहा कि आप वो बाइट करें। नेक्स्ट मटेरियल जो है वो ऑक्सीडाइज रीजनरेटेड सेल्यूलोज है या सर्जिसेल है, ठीक है। तो ये मटेरियल जो है इसको बेटर कहा है आपकी बुक ने, बिकॉज दिस मटेरियल कैन बी पैक्ड इन टू द सॉकेट अंडर प्रेशर। हमने थोड़ी देर पहले कहा ना कि एब्जॉर्बेबल जेलेटन स्पंज जो है वो इजीली पैक नहीं हो सकती, जबकि ऑक्सीडाइज रीजनरेटेड सेलुलोज और आगे मटेरियल आ रहा है कोलेजन जो है वो आप उसको इजीली पैक्ड कर सकते हैं। जब इजीली पैक्ड कर सकते हैं तो इसका रिजल्ट भी अच्छा होता है, ठीक है ना। लेकिन इसका भी एक डिसएडवांटेज है कि इट काज सम डिलेड हीलिंग ऑफ द सॉकेट। तो आपकी बुक ये कहती है कि दिस मटेरियल शुड बी रिजर्व फॉर मोर परसिस्टेंट ब्लीडिंग। ये आपके पास जो है ना वो ऑक्सीडाइज रीजनरेटेड सेलुलोज या सर्जिसेल है, ठीक है। इट इज अवेलेबल इन सिल्की फैब्रिक लाइक फॉर्म एज शोन इन दिस पिक्चर। अच्छा, जो थर्ड मटेरियल है वो हमारे पास टॉपिकल थ्रोमिन लिक्विड प्रिपरेशन में अवेलेबल होता है, ह्यूमन रिकॉम्बिनेंट थ्रोमिन। ये ह्यूमन रिकॉम्बिनेंट थ्रोमिन का क्या मतलब होता है? जब आप ह्यूमन जीन्स को ट्रांसफर कर देते हैं किसमें, बैक्टीरिया में, तो वो क्या करता है कि अब बैक्टीरिया अपनी मशीनरी को यूज करके, ठीक है ना, इस थ्रोम्बन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। इस थ्रोम्बन की जो ह्यूमन जो जीन है थ्रोम्बन फॉर्मेशन की, वो ट्रांसफर हो जाती है बैक्टीरिया में। तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अपनी सेलुलर मशीनरी को यूज करेगा और क्या करेगा, आपके लिए थ्रोम्बिन बनाएगा। तो दिस लिक्विड preparation then is used for the hemostatic, is a hemostatic agent। यहाँ इसको किन कंडीशन में यूज करना है, आप स्पेशल कंसर्न है, आपका इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट है, आपका पेशेंट है जिसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है ना, कोगुलेबिलिटी का प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो आपने इसको क्या करना है, जेलेटिन स्पंज के साथ जो है ना मिक्स करना है, और इसको सॉकेट में आपने क्या करना है, अप्लाई कर देना है, ठीक है। और इसको फिर आपने फिगर ऑफ 8 यूज करनी है, ठीक है ना। तो थ्रोम्बिन करेगा क्या, थ्रोम्बिन आपने जैसे पढ़ा हुआ है बेसिक साइंसेस में, the thrombin bypass steps in the coagulation cascade and helps convert fibrinogen to fibrin enzymatically which forms a clot। फिर आपने जो है क्या करना है कि घास पीस भी आपने रखना है इन अ रूटीन, जैसे आप करते हैं एक्सट्रैक्शन साइट पे या एक्सट्रैक्शन सॉकेट में, ठीक है। जो अगला मटेरियल है हमारे पास वो क्या, कोलेजन है। कोलेजन जो है वो आपको पता है इट प्रोमोट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन। जो आपने पढ़ा था ना कि जो ही वेसल के अंदर इंजरी होती है तो कोलेजन जब एक्सपोज होता है तो प्लेटलेट आ जाते हैं, एग्रीगेट करते हैं। तो क्या होता है, प्लेटलेट this material will cause platelet aggregation to accelerate blood coagulation। कोलेजन जो है वो सेवरल फॉर्म्स में अवेलेबल है, माइक्रो फिबुलर कोलेजन ये एवी टीन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इट इज अ लूज एंड फ्लफी बट कैन बी पैक्ड इनटू अ टूथ सॉकेट एंड हेल्ड इन बाय सुचरिंग एंड गॉस पैक्स एज विद अदर मटेरियल्स। तो आप इसको पैक भी कर सकते हैं, ठीक है, और सूचर भी लगा सकते हैं एहतियातन, ठीक है ना, फिगर ऑफ 8 का सूचर भी लगा सकते हैं। लेकिन हम अब पिक्चर में आपको दिखाएंगे कि आपको जरूरत नहीं होगी, लेकिन एहतियातन अगर आप कोई भी मटेरियल अप्लाई करते हैं हीमोस्टेटिक एजेंट तो आप फिगर ऑफ 8 का सूचर यूज कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ जेलेटिन स्पंज के लिए आपने जरूर लगाना है। ये देखें आपका जो आ, आ, जो कोलेजन है ये क्या है,
इट इज सप्लाइड एज ए प्लग, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, कोला प्लग, और एज ए टैप, फॉर एग्जांपल कोला टैप. तो these materials are more readily packed into a socket and are easier to use, but they are expensive. ठीक है ना. अब इस डायग्राम में आप देखें ना, तो आप फील करेंगे कि इट इज वेरी इजी. देखें, बिल्कुल ये सॉकेट है, ठीक है, ये मटेरियल है आपका रिजॉर्वर कोलेजन प्लग है, ठीक ठीक है. आपने इसको यूज कर लिया इजीली, देखें होल्ड किया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट से अप्लाई कर दिया, और नीचे आप इसको जब अप्लाई कर लेंगे तो आप घास पीस को यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर रख सकते हैं, ठीक है ना. ये देखें, फिगर ऑफ 8 भी इसने अप्लाई की हुई है. इधर आप डायरेक्ट जो है घास पीस भी रख सकते हैं, और इसने क्या किया हुआ है कि ये सुचर भी फिगर ऑफ 8 वाला एहतियातन अप्लाई कर लिए कि पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना, पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो, यानी ये डिसलाज ना हो. वैसे तो पैक हो जाता है बड़ा इजीली, ठीक है, लेकिन आप सपोर्टिव के तौर पे आप फिगर ऑफ 8 का सुचर भी लगा सकते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले हमने कहा कि यू कैन यूज द फिगर ऑफ 8 सुचर अदर देन जेलेटिन स्पंज. Thank you for watching. Wish you best of luck.